Hello everyone, welcome to my YouTube channel Lawzilla. I hope you all are doing great. Today in this video we are going to talk about the amendments in Schedule 3 of Companies Act 2013. So without wasting time, let's begin with the video. As you all know that MCA has issued notification dated 24th March 21 with respect to amendments under Schedule 3 of Companies Act 2013. This notification is applicable for financial year beginning on or after 1st April 21. जैसा कि आप सब जानते हैं कि शेड्यूल 3 इज डिवाइडेड इनटू 3 डिवीजन्स। डिवीजन 1 उन कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है जिन कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 अप्लाई होते हैं। डिवीजन 2 उन कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है जिन कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 अप्लाई होते हैं। डिवीजन 3 उन एनबीएफसीज पर एप्लीकेबल होता है जिन एनबीएफसीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2015 अप्लाई होते हैं। Firstly, we are going to discuss Division 1. These are the summary of amendments which we are going to discuss one by one in upcoming slides. First amendment is compulsory rounding of figures in financial statements. Pre-amendment, the round-off criteria was based on turnover and it was optional. Now, post-amendment, the round-off criteria is based on total income in place of turnover and it is now become mandatory. जिन कंपनीज की टोटल इनकम लेस देन 100 करोड़ है वो फिगर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं टू द नियरेस्ट 100, 1000, lakhs और मिलियंस और डेसिमल्स thereof. जिन कंपनीज की टोटल इनकम मोर देन 100 करोड़ है वो फिगर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं टू द नियरेस्ट लैक्स, मिलियंस और करोड़ और डेसिमल्स thereof. नेक्स्ट अमेंडमेंट इज ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट. इसके अंदर हेड नॉन करेंट एसेट में सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स जिसमें हमें ऐड करना है इंटेंजिबल एसेट्स. पोस्ट अमेंडमेंट इट विल बिकम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स एंड intangible assets and under subhead of property plant and equipment and intangible assets हमें replace करना है tangible assets with property plant and equipments. Next slide is with respect to the amendments on the face of P&L. Here we need to replace total revenue with total income, which is a sum of revenue from operations and other income. Earlier it was total revenue and now it has become total income. In next slides, we are going to discuss the additional disclosures and the deletions in the notes of balance sheet. From now onwards, we also need to disclose the shareholding of the promoters. Similar disclosure is already there in the listed companies. Promoter shareholding में हमें disclose करना है promoters name, number of shares held, percentage of shareholding at the end of financial year and percentage of change during the year. Promoter is defined under Section 2, Subsection 76 of the Companies Act 2013. For the definition, you can refer this section. नेक्स्ट इन ट्रेड पेबल हमें एजिंग शेड्यूल देना है उन ट्रांजैक्शंस का जो कि ड्यू हैं फॉर पेमेंट्स. इसमें हमें एमएसएमई एंड अदर क्रेडिटर्स डिस्क्लोज करने हैं डिस्प्यूटेड जो कि ड्यू हैं फॉर पेमेंट फ्रॉम लेस देन 1 ईयर्स, 1 to 2 years, मोर देन 3 years. अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं स्पेसिफाई है देन इन दैट केस डिस्क्लोजर शैल बी गिवन फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस. अनबिल्ड ड्यू शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली. इस अमेंडमेंट का बेसिकली जो एक्चुअल इम्पैक्ट पड़ेगा वो उन लिटिगेशंस पर पड़ेगा जो कि पेंडिंग है या फाइल होने वाली है अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. अगर कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल करता है फॉर इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस एंड कंपनी कहती है कि ये डेट तो डिस्प्यूट में है, देन अथॉरिटी स्क्रूटनाइज कर सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी चेक करने के लिए वेदर ये डेट अंडर डिस्प्यूट है या नहीं है. Next disclosure is with respect to property, plant and equipments and intangible assets. अगर कोई change 10% या उससे ज्यादा का होता है in the net carrying value of any class of property, plant and equipment, then company को separately disclose करना है reconciliation of gross and net carrying amount of each class of assets at the beginning and end of reporting period showing additions, disposals
acquisitions through business combinations, amount of change due to revaluation and other adjustments, and the related depreciation and impairment losses and reversals. Pre-amendment, this disclosure was mandatory. Now it need to be given in case of change of 10% or more each class of net carrying value of any property, plant and equipments. Under notes to balance sheet, current maturity of long-term borrowing has been shifted to short-term borrowing and it is no longer need to be disclosed in other current liabilities. Likewise, security deposit from long-term loans and advances has been shifted to other non-current assets. नेक्स्ट एडिशनल डिस्क्लोजर इज विद रिस्पेक्ट टू बोरिंग्स. अगर किसी कंपनी ने बोरिंग की है फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बोरोड अमाउंट को उस पर्पस के लिए नहीं यूज किया जिस पर्पस के लिए उसे बैंक से बोरो किया गया था, देन डिटेल्स ऑफ दोज बोरिंग्स नीड टू बी डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट डिस्क्लोजर इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड रिसीवेबल. इन ट्रेड रिसीवेबल हमें एजिंग शेड्यूल देना है उन ट्रांजैक्शंस का जो कि ड्यू हैं फॉर पेमेंट. इसमें हमें डिस्क्लोज करना है डिस्प्यूटेड एंड अनडिस्प्यूटेड ट्रेड रिसीवेबल बोथ विच आर कंसीडर्ड गुड एंड कंसीडर्ड डाउटफुल फॉर लेस देन 6 months, 6 months to 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year and more than 3 year. अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट नहीं स्पेसिफाई है, in that case, disclosure shall be given from the date of transactions. Unbilled dues को separately disclose करना है. Next disclosure financial statements में है with respect to the immovable properties, the title deeds of which are not held in the name of the company. इस disclosure के अंदर हमें वो immovable properties disclose करनी है जिनकी टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर नहीं है. इस डिस्क्लोजर के अंदर वो कंपनीज की प्रॉपर्टीज इंक्लूड नहीं होंगी जो कि कंपनी ने लेसर से लीज पर ली है अंडर द लीज एग्रीमेंट. इस डिस्क्लोजर में हमें डिस्क्लोज करना है प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, उसकी ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, टाइटल डीड किसके नाम पर है, क्या टाइटल डीड प्रमोटर, डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर के नाम पर है या फिर एम्प्लॉय ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर के नाम पर है, डेट जब से वो प्रॉपर्टी कंपनी के पास आई है एंड रीजंस क्यों प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर नहीं है, और अगर कोई डिस्प्यूट है तो वो भी डिस्क्लोज करना है. नेक्स्ट डिस्क्लोजर है रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स. अगर कोई कंपनी अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स को रिवैल्यूएट करती है तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो रिवैल्यूएशन बेस्ड है ऑन द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. Next disclosure is with respect to the disclosure from borrowing from banks and financial institutions. अगर किसी कंपनी ने लोन ले रखा है from banks और financial institutions और कंपनी की current assets की सिक्योरिटी दे रखी है, then कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्या कंपनी ने क्वार्टरली रिटर्न या स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स जो बैंक को फाइल करी है वो बुक ऑफ अकाउंट से मैच करती है या नहीं मैच करती है. अगर मैच नहीं करती है तो उसे रिकंसाइल करना पड़ेगा और अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी है तो उसका रीजन डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Next disclosure is with respect to loans that are granted to promoters, directors, KMPs and the related parties. अगर कंपनी ने promoters, directors, KMP या रिलेटेड पार्टीज को लोन दिया है जो कि रीपेबल ऑन डिमांड है या फिर उस लोन की रीपेमेंट टर्म स्पेसिफाई नहीं है, देन डिस्क्लोजर ऑफ सेम नीड टू बी गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट इज अ डिस्क्लोजर इन द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस. इसमें कंपनी को सीविप एजिंग शेड्यूल देना है उन प्रोजेक्ट्स का जो कि इन प्रोसेस हैं और टेम्परेरी सस्पेंडेड हैं फॉर लेस देन 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 years एंड मोर देन 3 years. मेक श्योर इसका टोटल बैलेंस शीट से सीविप अमाउंट के साथ मैच होना चाहिए. अगर किसी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन ओवरड्यू हो गया है या उसकी कॉस्ट एक्सीड हो गई है उस कॉस्ट से जो इनिशियली डिसाइड की गई थी उन प्रोजेक्ट्स की डिटेल भी देनी होगी. Same like we discussed in case of CWIP aging, disclosure need to be given in case of intangible assets under development.
Next, in additional regulatory information, details of Benami properties of the company also need to be disclosed. अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट में बेनामी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स चल रही हैं अंडर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988, देन कंपनी नीड टू डिस्क्लोज फ्यू थिंग्स. कंपनी की डिटेल्स, कंपनी ने प्रॉपर्टी कब एक्वायर की है, प्रॉपर्टी का अमाउंट, प्रॉपर्टी के बेनिफिशियरीज, अगर प्रॉपर्टी बुक्स में है देन उसका रेफरेंस जहां बैलेंस शीट में दिया गया है वो डिस्क्लोज करना है. अगर प्रॉपर्टी बुक में नहीं है देन उसका रीजन डिस्क्लोज करना है. अगर कंपनी की अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चल रही है एज एन अबेटर ऑफ द ट्रांजैक्शन और एज द ट्रांसफर, देन वो भी डिस्क्लोज करना है. यहाँ अबेटर से मतलब है कि अगर कंपनी ने किसी को असिस्ट किया है या उकसाया है बेनामी ट्रांजैक्शंस करने के लिए और उस कंपनी के अगेंस्ट में उससे रिलेटेड प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसका डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देना पड़ेगा. नेक्स्ट, किस टाइप की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उन प्रोसीडिंग्स का क्या स्टेटस है और कंपनीज का उन प्रोसीडिंग्स पर अपना क्या व्यू है, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा. नेक्स्ट डिस्क्लोजर इज विद रिस्पेक्ट टू द कंपनी विच डिक्लेयर्ड विलफुल डिफॉल्टर. अगर कोई कंपनी बैंक के थ्रू विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दी जाती है देन उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा डेट जब वो विलफुल डिफॉल्टर बैंक के द्वारा डिक्लेयर की गई है एंड उस डिफॉल्ट की डिटेल्स लाइक अमाउंट एंड नेचर ऑफ डिफॉल्ट एक्सेट्रा. नेक्स्ट डिस्क्लोजर्स आर विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन विद द स्ट्रक ऑफ कंपनी. अगर किसी कंपनी ने ट्रांजैक्शंस की हैं उस कंपनी के साथ जो स्ट्रक ऑफ हो चुकी है देन कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा नेम ऑफ कंपनी स्ट्रक ऑफ, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो आपने स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ किया है, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस एंड द रिलेशनशिप विद द स्ट्रक ऑफ कंपनी. In this additional regulatory information, next amendment is with respect to registration of charges or satisfaction with the registrar of company. अगर कंपनी ने कोई चार्ज क्रिएशन या सेटिस्फेक्शन पेंडिंग है बियॉन्ड द स्टैट्यूटरी पीरियड देन उसकी डिटेल्स एंड उसका स्पेसिफाइड रीजन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करना पड़ेगा. कंप्लायंसेस विद नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ कंपनी. जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंडर कंपनीज एक्ट नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ कंपनी प्रिस्क्राइब्ड है अंडर क्लॉज 87 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट रेड विद द कंपनीज रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर्स रूल्स 2017. अगर कंपनी उस लिमिट के बियॉन्ड जाती है तो उसे डिस्क्लोज करना होगा उस कंपनी का नाम एंड सिन एंड उसका रिलेशनशिप विद द होल्डिंग कंपनी. In additional regulatory information, the next are the ratios. Following ratios need to be disclosed by the company under the financial statements. Current ratios, debt equity ratio, debt service coverage ratios, return on equity ratio, inventory turnover ratio, trade receivable turnover ratio, trade payable turnover ratio, net capital turnover ratio, net profit ratio, return on capital employed and return on investment. और किसी भी रेशो में वेरिएशन होता है प्रीसीडिंग ईयर से 25% या उससे ज्यादा का देन उसका रीजन भी मेंशन करना होगा. नेक्स्ट अमेंडमेंट इज विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्लोजर्स ऑफ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट. अगर किसी कंपनी में कोई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अप्रूव होती है लाइक इन डीमर्जर्स, मर्जर्स, अमलगमेशन एक्सेट्रा देन कंपनी को डिस्क्लोज करना होगा कि बुक ऑफ अकाउंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ा उस स्कीम को अकाउंट फॉर करने के बाद. अगर आप उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते वक्त कुछ डेविएशन करते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर रीजन भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताना पड़ेगा. Now this is a very important disclosure. These are the details in respect of utilization of the lended funds. ये disclosure है with respect to end use of intercorporate loans. The purpose of it is to know the end use of funds and the chain of transactions. ये disclosures है उन transaction का जिसमें कंपनी किसी और entity को lending करती है, फंड इन्वेस्ट करती है इस इंटेंशन से कि वो उस फंड को आगे किसी और कंपनी, एंटिटी या पर्सन को लेंड करेगी या इन्वेस्ट करेगी. अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को या किसी पर्सन को या किसी एंटिटी को इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटी को लोन दिया है, एडवांस दिया है या इन्वेस्टमेंट की है इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि वो आगे किसी और पर्सन या एंटिटी को लोन देगा या उसमें इन्वेस्ट करेगा,
कंपनी के बिहाफ पे, या फिर गारंटी सिक्योरिटी दे रहा है कंपनी के बिहाफ पे। इन दीज केसेस कंपनी को डिस्क्लोज करना है date and amount of fund advanced or loaned or invested in intermediaries with the complete details of each intermediary. Intermediary means company, entity, person, foreign entity जिसे कंपनी ने लोन दिया है या जिसमें कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की है. Second is date and amount of fund further advanced or loaned or invested by such intermediaries to other intermediaries or ultimate beneficiaries along with complete details of the ultimate beneficiary. यहाँ पर कंपनी को डिस्क्लोज करना है जो इंटरमीडियरीज ने फंड आगे किसी और इंटरमीडियरी को दिया है उनकी डिटेल्स. थर्ड इज डेट एंड अमाउंट ऑफ गारंटी सिक्योरिटी और द लाइक प्रोवाइडेड टू और ऑन द बिहाफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी. कंपनी के बिहाफ पर अगर कोई गारंटी या सिक्योरिटी दी गई है तो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर डिस्क्लोज करनी है. इन फोर्थ पॉइंट कंपनी को एक डेक्लेरेशन देनी है विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड कंपनीज एक्ट कि उन्होंने इसके अंदर इन एक्ट्स को कंप्लाई किया है. नेक्स्ट डिस्क्लोजर इज विद रिस्पेक्ट टू द यूटिलाइजेशन ऑफ बोरोड फंड. सेम डिस्क्लोजर जो लेंडिंग कंपनी ने दिया है वो बोरिंग कंपनी को भी देना है कि उन्होंने जो फंड्स बोरो किया था फ्रॉम द फंडिंग पार्टी वो आगे किस इंटरमीडियरी को फर्दर लेंड किया है. इसके अंदर जो डिस्क्लोजर्स हैं वो हैं डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड्स रिसीव फ्रॉम द फंडिंग पार्टीज विद कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ईच फंडिंग पार्टी. फंडिंग पार्टी की डिटेल्स एंड डेट एंड अमाउंट ऑफ फंड डिस्क्लोज करना है. इन सेकेंड पॉइंट फंडिंग पार्टी से जो फंड रिसीव हुआ था एंड फर्दर इंटरमीडियरी को लेंड किया है उसकी डिटेल्स डिस्क्लोज करनी है. इन थर्ड पॉइंट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी अगर कोई गारंटी या सिक्योरिटी दी गई है तो उसकी डिटेल्स डिस्क्लोज करनी है. एंड इन फोर्थ पॉइंट हमें एक डेक्लेरेशन देनी है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि कंपनी ने फैमा प्रोविजंस को, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को और कंपनीज एक्ट को कंप्लाई किया है. Next disclosure is for the Section 8 company. Section 8 company need to disclose the grants or donation received by them. जैसा कि आप सबको पता है सेक्शन 8 कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बेसिकली और उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है टू प्रमोट फील्ड ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिलीजन एक्सेट्रा. ये जो कंपनीज होती हैं इनके जो प्रॉफिट्स भी होते हैं ये इनको इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करती हैं एंड दे डू नॉट पे एनी डिविडेंड टू देयर मेंबर्स बेसिकली. नेक्स्ट डिस्क्लोजर इज फॉर अनडिस्क्लोज्ड इनकम. अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो कंपनी ने बुक ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं की है लेकिन एट द टाइम ऑफ टैक्स असेसमेंट वो ट्रांजैक्शन इनकम में डिस्क्लोज हो जाती है, देन दैट नीड टू बी डिस्क्लोज्ड. Next are the additional CSR disclosures. These disclosures are with respect to the CSR expenditure. फर्स्ट डिस्क्लोजर इज अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी स्पेंड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर. आप सभी को पता है कि जो कंपनी को CSR एक्सपेंडिचर करना होता है वो करना होता है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर. जो भी कंपनी अंडर सेक्शन 135 फॉल करती हैं उनको ये 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट स्पेंड करना होता है. तो यहाँ पे वो डिस्क्लोजर देना है कि कितना आपका 2% अमाउंट बनता है और कितना आप एलिजिबल हो रहे हैं उसको स्पेंड करने के लिए. सेकंड में एक्चुअली में आपने कितना स्पेंड किया. थर्ड इज अ शॉर्टफॉल. जितना आपको स्पेंड करना था अगर आपने उससे कम स्पेंड किया है तो दैट विल बी अ शॉर्टफॉल एट द एंड ऑफ द ईयर. अगर कोई प्रीवियस ईयर का शॉर्टफॉल है तो वो भी डिस्क्लोज करना है. उस शॉर्टफॉल का रीजन डिस्क्लोज करना है. नेचर ऑफ CSR एक्टिविटीज मींस द एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स जो कि एज पर शेड्यूल 7 कंपनीज फॉलो कर रही है वो नेचर देना है. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज करने हैं. फॉर एग्जांपल अगर कंपनी किसी ऐसे ट्रस्ट के थ्रू CSR कर रही है जिसे कंपनी ही कंट्रोल करती है तो उसकी डिटेल्स देनी है. अगर कंपनी की किसी CSR एक्टिविटी को लेकर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है एंड कंपनी ने उसके लिए प्रोविजन किया है then movement in the provision during the year also need to be disclosed. Next disclosure है with respect to cryptocurrency or virtual currency. These disclosures are under notes to profit and loss. अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की है इन क्रिप्टो और वर्चुअल करेंसी देन कंपनी को डिस्क्लोज करना होगा उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर. फर्स्ट. सेकंड,
अमाउंट ऑफ करेंसी जो अवेलेबल है रिपोर्टिंग डेट पर वो डिस्क्लोज करना है। एंड अगर कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए किसी पर्सन से एडवांस या डिपॉजिट लिया है तो उसकी डिटेल्स भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करनी होगी। That's all for Division 1 amendment. Now let's discuss amendments in Division 2. I have already briefed you that Division 2 is for the entities who are following company's Indian Accounting Standard Rules 2015. These amendments are in addition to the amendments given under Division 1. In this, first disclosures are on the face of balance sheet. In item financial liabilities, in head non-current liability, after borrowing, new item to be inserted, namely lease liabilities. Lease liability I have already highlighted in the green color. Same in case of current liabilities as well. Secondly, in statement of change in equity, there are two new insertions. Firstly, अगर कोई change है in equity share capital due to the prior period error, that also need to be disclosed. Secondly, restated balances at the beginning of the current reporting period means अगर error की वजह से current year के opening balance में change आता है, तो that need to be restated. There are two new insertions in the amendment and that I have highlighted in yellow color. These are the amendments. There are few amendments in the trade receivable. In trade receivable हमें aging schedule देना है उन transactions का जो कि due है for payment. इसमें हमें disclose करना है disputed and undisputed trade receivable which are considered good, which have significant increase in credit risk and which are credit impaired for less than 6 months, 6 months to 1 year, 1 to 2 year, 2 to 3 year and more than 3 years. अगर due date of payment नहीं specify है, in that case disclosure shall be given from the date of transaction. Unbilled dues को separately disclose करना है, उनको disclosure separately होगा. That's all for Division 2 amendments. Now let's discuss with amendment in Division 3. Division 3 is for NBFCs who are following company's Indian Accounting Standard Rules 2015. These amendments are basically incremental to the amendments given under Division 1 and 2. All amendments are already been discussed. The last amendment which is applicable to NBFCs is I am discussing in the last slide. NBFC has to disclose following ratios in the financial statements. Capital to risk weighted asset ratio CRAR, Tier 1 CRAR, Tier 2 CRAR, liquidity coverage ratio. These are the four ratios which need to be disclosed by the NBFCs in their financial statements. That's all for this presentation. Thank you so much guys for listening this video. I hope you have liked the video and understood the amendments very well. If you like this video, please do like, subscribe and comment on my channel Lawzilla. For any query, you can reach me out at lawzilla@gmail.com. Thank you very much. Bye bye.